Okay, guys. Am I visible and audible? Okay. Okay. Just like last time, please hear. Just like last time, please hear me out first. पहले मेरी बात सुन लो, समझो अच्छे से टॉपिक, and then write the information. Try to write it in as short format as possible. ठीक है? Just the key part and keywords which you can recall in the examination and you can guess the correct answer. ठीक है? No need to write each and everything. ठीक है? Okay, let's start now. Okay, Asia Cup 2023. Before ICC World Cup started, the major tournament was Asia Cup 2023. Asia Cup is played for cricket. Okay, so the host country for this tournament was Pakistan and Sri Lanka. आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए होस्ट कौन है? इंडिया. ठीक है, बट फॉर दिस इट वाज पाकिस्तान एंड श्रीलंका. फाइनल कहां पे हुआ? इट हैपेंड एट आर प्रेमदास स्टेडियम इन कोलंबो, श्रीलंका, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. ठीक है, विद इन एशिया कप India and Sri Lanka are the most successful team because including this victory, India कितनी बार जीता है? प्रज्ञा, आई डोंट नो बिकॉज बाकी सबको तो सुनाई दे रहा है. सो प्लीज चेक सेटिंग्स फ्रॉम योर साइड. ठीक है, इंक्लूडिंग दिस विन इंडिया हैज वॉन फॉर 7 times एंड श्रीलंका हैज वॉन 6 times. ठीक है, लिख लो. प्लीज राइट डाउन दैट. अच्छा, पहले इतना लिख लो. ओके, लिख लिया एवरीबडी?
please include two additional information that total 6 team played Asia Cup. टोटल कितनी टीम खेली है? 6. ठीक है. Out of those 6, 5 team, Afghanistan, Pakistan, India, बांग्लादेश एंड श्रीलंका. 6 में से 5 टीम कौन सी है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका. They are full-time members of Asian Cricket Council, ACC, Asian Cricket Council. तो छठी टीम कौन सी है? आपको पता है? Anybody? Which is the 6th team out of the 5 full members? Nepal. Very good. Nepal, yes. So Nepal is not a member of Asian Cricket Council, but they qualified by winning ACC Men's Premier Club. So with the help of that, because they won ACC Men's Premier Cup, Nepal was the 6th team that played in Asia Cup. Clear, everybody? चलो आगे चले. नेक्स्ट. James Webb Telescope. This, Ria, I will cover that after the lecture or in the lecture someday. Okay. James Webb Telescope. It is news because this is the most powerful telescope and it is a successor to Hubble Space Telescope. ठीक है. लोकेशन कहां पे है? Both of this telescope are located in space. ठीक है. But James Webb Telescope वो काफी दूर है. It is 1.5 million kilometer away from Earth and it is the biggest and most powerful. Why? Because उसका जो प्राइमरी मिरर है उसका डायमीटर कितना है? 6.5 meters. ठीक है. What is the objective of James Webb Telescope? It is to find out the different galaxies, explore the unexplored part of the universe, and also to look back 13.5 billion years ago and watch the birth of new galaxies. ठीक है. वो कौन से वेवलेंथ के ऊपर काम करता है? I remember in last Sunday lecture I taught you about electromagnetic spectrum. मैंने बताया था आपको गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड. ठीक है. तो वो कौन सी वेवलेंथ पे काम करता है? जेम्स वेब नियर इंफ्रारेड. ठीक है. एंड मिड इंफ्रारेड लाइट. ठीक है. On the other hand, Hubble was able to do it into ultraviolet and visible
एंड नियर इंफ्रारेड लाइट। ओके, पहले इतना लिख लो, लोकेशन, प्राइमरी मिरर, ऑब्जेक्टिव एंड वेवलेंथ, इतना लिख लो। इसके कंटिन्यूएशन में पीछे एक स्लाइड है। आदि ये तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है इन डिटेल इन क्लासरूम लेक्चर्स ऑलरेडी, ठीक है। सो यू कैन विजिट दोस लेक्चर। हो गया, चले आगे। एवरीबॉडी, चले आगे। ओके, सी नाउ सम फैक्ट्स अबाउट James Webb Telescope. It is a result of an international collaboration between NASA, ESA, European Space Agency, and Canadian Space Agency. It was launched in December 2021. Do you guys remember Aditya L1 and everything we learned about Lagrange point? That there are total 5. In the same fashion, it is currently located at Lagrange point 2, which is approximately 1.5 million kilometers away from Earth. Okay. It is the largest and most powerful infrared space telescope. हमने अभी पढ़ा कौन सी वेवलेंथ में काम करता है, इंफ्रारेड। सक्सेसर टू हबल टेलीस्कोप, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इट कैन सी बैकवर्ड इन टाइम, जैसा कि पहली लाइन मैंने क्या बोला था कि ऑब्जेक्टिव क्या है, 13.5 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ है वो हमें देखना है, वो हमें समझने की कोशिश करनी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को पहले क्या हम कहते थे, नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप। ओरिजिनल नेम was नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप, but it was renamed in 2002 after James Webb, who was the administrator of NASA. ठीक है। It is a large infrared telescope with 6.5 meter primary mirror. ये तो ऑलरेडी हमने पीछे लिख लिया है, ठीक है, लिख लो।
हो गया गाइस, चले आगे। ओके, एवरीबॉडी यू नीड टू गिव मी अ गो अहेड। फिर मत कहना ये रह गया मेरा लिखने में, ठीक है? चलो लेट्स गो। समुद्र पहाड़ी डिप्लॉयमेंट टू आसियान। पहले मेरी बात ध्यान से सुन लेना, फिर लिखना। सी, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट आसियान, ठीक है? कब बना था, 10 मेंबर ग्रुप, बैंकॉक डेक्लरेशन, इंडिया और आसियान की समिट भी हमने पढ़ ली है। ओके, प्लीज, आसियान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप। इंडिया और आसियान के बारे में अच्छे से पढ़ लेना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कब गए हैं कहीं मीटिंग करने के लिए, हमने आसियान को कब होस्ट किया है इंडिया में, ठीक है? द लेटेस्ट मीटिंग दैट आवर प्राइम मिनिस्टर वेंट एंड द लास्ट मीटिंग्स दैट इंडिया हेल्ड ऑफ आसियान इन इंडिया, ठीक है? नाउ रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, प्लीज रिमेंबर, नेवी का शिप नहीं है, कोस्ट गार्ड का है, नाम क्या है? समुद्र प्रहारी। इट इज अ स्पेशल पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। वो हमने कहां पे भेजा है? आसियान कंट्रीज में। कौन सी कंट्रीज में? बैंकॉक, होचिमी, जकार्ता इन इंडोनेशिया, ठीक है? ये क्यों भेजा? बिकॉज ड्यूरिंग द आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हमने ये प्लेज किया था इन काम्बोडिया इन नवंबर 2022, ठीक है? पॉल्यूशन कंट्रोल तो करता ही है, बट इट ऑल्सो हैज चेतक हेलीकॉप्टर, ठीक है? एंड इट कैन ऑल्सो डू अनमैन्ड मशीनरी ऑपरेशन। Along with this ship, 13 NCC cadets, they also participated in Punit Sagar Abhiyan. क्या है? It is an international outreach program, okay, which we do it with other partners for same things: pollution control in the ocean, sea, and beach cleanup. India is also a signatory to UNCLOS. UNCLOS क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ये क्यों बनाया गया है? बिकॉज इट इज वन ऑफ द नेसेसिटीज टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट पोल्यूशन। इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी ऑफ मारपोल, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप। उसका कन्वेंशन का नाम क्या है? मारपोल।
Now, India is not a participant in London Convention or London Protocol. The second last point, ठीक है? And India has always participated with other countries. For an example, Norway to control marine pollution. Okay? Any doubt in this? Okay, guys. हो गया. Everybody, चले आगे. ओके शिलजा, थोड़ा जल्दी लिखो. ओके गाइस, चलो आगे चलते हैं अभी. ठीक है. ओके. नाउ प्लीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. पहले मैप ध्यान से देखो. पहले रशिया दिख रहा है. यस और नो? बाजू में यूक्रेन दिख रहा है. यस और नो? नाउ बोथ ऑफ दिस कंट्रीज दे बॉर्डर ब्लैक सी. यस और नो? ठीक है. एंड द रीजन विच इज highlighted in dark green is under the control of Russia, but it belongs to Ukraine. Lusank, Donbass, Donetsk and Crimea. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? वो कौन कंट्रोल कर रहा है? इट इज अ फैक्ट, और हम लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, रशिया. ठीक है. जो क्रीमिया दिख रहा है, इट इज अ पेनिनसुला
which was annexed in 2014. Yes or no? Remember, क्लास में पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें. Now, Black Sea is very important for Russia because it is one of the few warm water port. क्या मैंने बोला? Warm water port of Russia. Yes or no? Because Russia belongs to colder region, colder latitudes. But this part, Russia has a direct access to warm water ports. From Sea of Azov और ब्लैक सी को कौन सा बॉडी कनेक्ट करता है? स्ट्रेट ऑफ कर्च. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सबको? स्ट्रेट ऑफ कर्च. ब्लैक सी एंड सी ऑफ मारमरा. ब्लैक सी एंड सी ऑफ मारमरा, उसे कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता है? बॉस्फोरस. यस और नो? एंड सी ऑफ मारमरा से एजियन सी को कौन सा कनेक्ट करता है? डार्डनालिस. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस थ्री स्ट्रेट्स एंड द मैप ऑफ दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं. दे विल आस्क यू विच कंट्रीज बॉर्डर यूक्रेन. तो रशिया, पोलैंड, जर्मनी, रोमेनिया, मोल्डोवा. ओके, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है. Why this is very important? Because of a treaty called Black Grain Initiative. Okay, Black Sea Grain Deal. Yes, because Ukraine is called the wheat basket of the world. Ukraine is the largest producer of wheat. ठीक है. But because of the war, that whole region is affected and everything is blocked by Russia. So the countries, they came together trying to persuade Russia that please आप यूक्रेन को फूड एंड फर्टिलाइजर्स अलाउ करिए भेजने के लिए. ठीक है. अंडरस्टूड अप टिल नाउ एवरीबॉडी? चलो देखते हैं आगे. ओके, सी, Turkish president has met the Russian president in order to start Black Sea Grain Deal, which Russia withdraw on July 17, 2023. ठीक है. बट टर्की क्या कह रहा है? प्लीज रिज्यूम दिस ट्रीटी. ठीक है. ये जो डील है वो यूनाइटेड नेशन एंड टर्की ने साइन की थी. कहां पे? इस्तांबुल में, in July 2022. Like I said, the deal was done so that only some commodities like food and fertilizers, they can be exported from three Ukrainian ports: Odisha, Chomsmok and Yuzhny or Pedvinny. It was only for 6 months. 120 days मतलब कितने हो गए? 6 महीने. Okay. The deal was to save time, humanitarian corridor for Ukraine exports. ये डील अच्छे से इंप्लीमेंट हो रही है, उसके लिए एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमिटी बनाई गई थी, JCC, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमिटी. It was hosted in Istanbul and includes representative from Russia, Turkey, Ukraine and the United Nations. United Nations also acted as a secretariat for the center. JCC क्या करता है? मॉनिटरिंग करता है. ठीक है. Ukraine is one of the largest exporter of wheat, maize, rapeseed, sunflower and sunflower oil globally.
ठीक है. Its access to the deep sea ports in the Black Sea helps directly approach Russia and Europe, along with grain importers from Middle East and North Africa. Okay, लिख लो. Any doubt in this? Just for food and fertilizers from Ukraine, and that too only from 3 ports. Okay. इसके सामने रशियंस को क्या डील मिली थी? That even they can export their food and fertilizer. But Russia find this deal very discriminatory because West keep imposing sanctions. तो फिर रशिया ने बोला अपने को ये नहीं खाएगा. ठीक है. एनी डाउट इन दिस? आई होप दिस इज क्लियर. एंड मैंने अभी यूक्रेन के बॉर्डर के स्टेट्स में गलती से जर्मनी बोल दिया था. जर्मनी नहीं है, पोलैंड है. ठीक है. ऑलरेडी मैंने पुराने लेक्चर्स में कवर कर लिया है यूक्रेन के नेबर्स कौन है. ठीक है. यू शुड रिमेंबर दिस रीजन बाय हार्ट. हो गया. एवरीबॉडी लिख लिया? चले आगे. ओके, चल. CMV वायरस फैक्चुअल है, सिर्फ याद रखना है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा. टोमेटो ग्रोवर्स इन महाराष्ट्र attribute crop decline to cucumber mosaic virus, while in southern and Karnataka states blame tomato mosaic virus for their crop loss. ठीक है. This particular slide deals with TOMV.
और उसके बाद वाली जो है वो किसके लिए है, CMV. सो TOMV belongs to the Virgviridae family and it is also closely related with the TMV. ठीक है. It was first identified in tomatoes in 1935. ठीक है. खराब सीड से हो सकता है, सैपलिंग से हो सकता है, एग्रीकल्चर टूल से हो सकता है, and it can also spread because of human contacts. Some insects में भी ये vector transmit होता है. What happens when the plant is infected? ग्रीन कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, एंड इट अपीयर्स लाइक ब्लिस्टर. ठीक है, लिख लो. दिस इंफॉर्मेशन इज अबाउट TOMV. ठीक है, टोमेटो मोजेक वायरस. हो गया, चले आगे. ओके अनुष्का, थोड़ा जल्दी लिखो, इसमें तो कुछ नहीं है इतना लिखने जैसा. ओके, चलो नेक्स्ट. Now the next slide is about CMV. Okay, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस. CMV का कौन से फैमिली को बिलोंग करता है, ब्रोमोविरिडे. ठीक है, ये कौन से पे था, विरग्रविरिडे. ठीक है, और ये बहुत सारे चीज को ये हो सकता है. ठीक है, इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन क्यूक्यूम्बर प्लांट्स. ठीक है, मेनली स्प्रेड थ्रू एफिड्स. एफिड्स क्या है, इट्स वन टाइप ऑफ इंसेक्ट्स. ठीक है, विच आर सैप सकिंग इंसेक्ट्स. ठीक है, इन cucumber it causes mosaic like patterns of yellow and green spots. अगर ये होता है किसी प्लांट को तो क्या होता है, it affects fruits formation and leads to stunting. Stunting मतलब ट्री बड़ा नहीं हो पाता. ठीक है, ये दोनों चीज, दोनों वायरस में कॉमन क्या है, बोथ वायरस हैव अ सिंगल stranded RNA genome. RNA is ribonucleic acid in a rod-shaped protein coat. Both virus enter the plant cell through wounds or natural openings
and replicate in cytoplasm. They move systematically through phloem. ये जो phloem है, it is used to transfer nutrients and food in plants. आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में xylem and phloem. Xylem is used for the transportation of water and phloem is used for the transportation of food and nutrients. Both virus can cause 100% क्रॉप लॉस. ठीक है, अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया अच्छे से तो लिख लो. हो गया, चले आगे. एवरीबॉडी ओके, चलो. इंडिया जॉइन्स आर्टेमिस अकॉर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट. चंद्रयान, आदित्य, ये जितने भी काम है उसमें भी इतना ही इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला. ठीक है, आर्टेमिस. क्या है ये आर्टेमिस अकॉर्ड्स? नासा, पहले तो ये पढ़ते हैं. नासा एंड इसरो will collaborate to send Indian astronaut. कहां पे? Trained at Johnson Space Center in Houston, Texas to ISS International Space Station in 2024. ठीक है, ये सबसे पहली बात है. दूसरी बात, आर्टेमिस अकॉर्ड्स क्या है? यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, नासा है, एंड 7 अदर फाउंडिंग मेंबर्स. कौन है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लक्समबर्ग, यूएई एंड यूके. दे ऑल मेट इन 2020 एंड दे सेट कॉमन प्रिंसिपल्स जिसके कारण हम आउटर स्पेस को इन अ पीसफुल वे यूज कर सके, ताकि उधर भी कंपटीशन ना हो. ठीक है, कॉमन प्रिंसिपल्स टू गवर्न सिविल एक्सप्लोरेशन. सिविल होता है यूज और एक होता है मिलिट्री यूज. हमें कौन सा करना है? सिविल यूज. ठीक है, ऑफ आउटर स्पेस, मून, मार्स, कॉमेट, एस्टेरॉइड्स एक्सेट्रा. ये इट इज इन अ वे मॉडर्न वर्जन and it builds upon the foundation of outer space treaty जो यूनाइटेड नेशन में साइन की गई थी. ठीक है, फॉर इंटरनेशनल स्पेस लॉ. इंडिया became the 27th country to sign the non-binding Artemis Accord. ये जो अकॉर्ड है, ये कैसे है?
नॉन बाइंडिंग, ठीक है। क्या है इस अकॉर्ड में, करना क्या है? पीसफुल पर्पस, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? इट इज अ कॉमन प्लेस फॉर एवरीबडी। रजिस्ट्रेशन, डेटा शेयरिंग, भाई आपका कौन सा रॉकेट जा रहा है उसका रजिस्ट्रेशन, कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, डेटा शेयरिंग। प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज एंड मिटिगेशन ऑफ डेब्रीज। डेब्रीज इज अनवांटेड स्पेस पार्टिकल्स, आइदर ह्यूमन मेड और नेचुरल, ठीक है। स्पेस डेब्रिस क्या होता है? जैसे हमारा प्रज्ञान, अब तो वो कुछ काम का नहीं है। इट इज जस्ट अ वेस्ट लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून एंड आउटर स्पेस, तो वो क्या हो जाता है? डेब्रिस, ठीक है। एनी क्वेश्चन इन दिस? यस, शिखा, सॉरी। दिस इज अ नॉन बाइंडिंग अकॉर्ड। बाइंडिंग नहीं है कि आपको 100% फॉलो करना ही है। इट इज अ नॉन बाइंडिंग। इट इज लाइक अ गाइडेंस बुक। अगर आप करो तो अच्छी बात है, अगर नहीं करोगे तब भी कोई बात नहीं। भाई कोई डाउट? आर्टिमिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ यूएसए। यूएसए ऑलरेडी आर्टिमिस 1 कर चुका है, 2 और 3 करना है। इसकी नेक्स्ट स्लाइड उसके बारे में ही है, ठीक है। लिख लो। चले आगे, नेक्स्ट करूं? ओके। सी, Artemis 1. It was a unmanned mission to the moon. स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या था? ओरायन। ओरायन क्या है? स्पेस क्राफ्ट। और जो रॉकेट उसको लेके गया स्पेस क्राफ्ट को, उसका नाम क्या है? स्पेस लॉन्च सिस्टम। ऑलरेडी नवंबर 16 2022 में
ये हमने कर लिया है, हमने मतलब नासा ने, नासा कैनेडी स्पेस सेंटर, ठीक है, डायरेक्टली टू द मून। अभी आर्टिमिस 2 करने वाले हैं 2024 में। इसमें क्या होगा देखो, पढ़ो, क्रूड ल्यूनर फ्लाई बाय मिशन, मतलब हम मून के पास से गुजरेंगे स्पेसक्राफ्ट में बैठ के, और इसमें ह्यूमंस भी होंगे क्योंकि ये क्रू भी होगी। इट विल मार्क द फर्स्ट क्रू मिशन अंडर द आर्टेमिस प्रोग्राम, ठीक है। कितने एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे? 4 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, ठीक है। एंड इन आर्टेमिस 3 human will return on the moon. NASA will send again people on the surface of the moon for exploration, ठीक है। And at the end of this project we will make lunar gateway station in 2029, ठीक है। पहले हमने क्या भेजा? स्पेसक्राफ्ट विदाउट क्रू, क्रू मीन्स ह्यूमंस, वो ऑलरेडी हो गया। नासा नेक्स्ट ईयर क्या करेगा? फ्लाई बाय मिशन विथ क्रू, एंड इन 2025 ह्यूमंस बैक ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ठीक है। लिख लो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? हो गया, चले आगे। ओके, चलो। सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। चलो पहले मुझे ये बताओ, सीबीएफसी पता है आपको? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यस और नो?
जो सर्टिफिकेट्स देते हैं, कोई भी पिक्चर शुरू होने से पहले आता है कि नहीं आता है? ओके, दैट सर्टिफिकेशन एंड एवरीथिंग came as a result of Cinematograph Act 1952. It was enacted by the Parliament to ensure that films are exhibited in accordance with the limit of tolerance of Indian society. ठीक है? So that movies ऐसे बने ताकि हमारी security of state, territorial integrity, friendly relation with foreign states, public order, decency and morality, ये सब खराब ना हो. ठीक है? सेक्शन 3 जो है सिनेमेटोग्राफ एक्ट का, वो किसका ऑर्गेनाइजेशन देता है? CBFC. हम क्या कहते हैं उससे पॉपुलरली? सेंसर बोर्ड. ठीक है? CBFC वर्क्स अंडर IB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. ठीक है? अगर आपको ये सर्टिफिकेट मिला, सपोज एडल्ट सर्टिफिकेट मिला किसी मूवी को, और वो उससे खुश नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? एपिलेट ट्रिब्यूनल, जो वो लॉ के अंदर मेंशन है, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, उसमें जो एपिलेट ट्रिब्यूनल है, वहां पे आप जाके अपील भी कर सकते हो. ठीक है? पहले इतना लिख लो, दिस इज द बेसिक ऑफ दिस एक्ट. इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं रिसेंटली, द लॉ वॉज पास्ड, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है? पहले बेसिक लिख लो, फिर इसके बाद मैं आपको अमेंडमेंट्स लिखवाता हूं इसके. ठीक है? हो गया? चले आगे. ओके, चलो. रिसेंटली लोकसभा एंड राज्यसभा पास द अमेंडमेंट बिल. ठीक है? तो क्यों ये बिल को पास करने की जरूरत पड़ी? फॉर 3 मेन रीजंस. आपको अभी देखने में हार्ड लगता है लेकिन बहुत इजी है. 3 मेन रीजन थे. एक, पायरेसी. तो पायरेसी को एकदम स्ट्रिक्ट कर दिया है. 3 महीने से 3 साल कर दिया है. ठीक है? इम्प्रिजनमेंट, फाइन 3 लाख की जगह 5 लाख 5% कर दिया है ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट. द सेकंड मेन रीजन वॉज द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. अभी आदित्य चोपड़ा ने कुछ कुछ होता है बनाया है, कुछ कुछ होता है नहीं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बनाया है, तो मैं ना बना पाऊं उसके लिए क्या? कॉपीराइट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सेफ गार्ड करने के लिए भी ये बनाया है. ठीक है? इट ऑल्सो एम्फसाइज
ऑटोनॉमी ऑफ द सेंसर बोर्ड जो अभी हमने पढ़ा, ये क्यों जरूरी था? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, के एम शकरप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, दैट गवर्नमेंट अगर सीबीएफसी कोई सर्टिफिकेट दे सकती है, पास कर देती है, बाद में गवर्नमेंट कुछ नहीं कह सकती है, ठीक है। तो वो ऑटोनॉमी के लिए ये लॉ पास किया गया है, अमेंड किया गया है, ठीक है। नया रेटिंग सिस्टम लाए हैं, चिल्ड्रन अबो 7 विथ पीजी पेरेंटल गाइडेंस, अबो 13 एंड अबो 16, ठीक है। फिर क्या था, अगर एक बार हमने पास कर दिया, कोई सर्टिफिकेट दे दिया, तो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी थी? 10 साल की। बट नाउ अगर आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, तो वो लाइफ लॉन्ग आपकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। द बिल फॉर्मलाइज द प्रैक्टिस ऑफ फिल्म्स टू बी रीसर्टिफाइड फॉर टेलीविजन एंड अदर मीडिया, ठीक है। और ये जो नया क्लासिफिकेशन है एज का, वो किसने बोला था? अंडर द आईटी रूल्स 2021 एंड श्याम बेनेगल कमिटी, ठीक है। श्याम बेनेगल इज अ वेरी फेमस डायरेक्टर इन इंडिया, ठीक है। बहुत सिंपल है, एक एंटी पायरेसी, दूसरा कॉपीराइट एंड आईपीआर, तीसरा इंडिपेंडेंस ऑफ द सेंसर बोर्ड, चौथा रेटिंग, फिफ्थ क्या था? सर्टिफिकेशन फॉर टेलीविजन एंड अदर मीडिया, एंड लास्ट पॉइंट 10 साल की जगह परमानेंट सर्टिफिकेशन, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? कोई पॉइंट पता नहीं चला हो ऐसा कुछ है? कोई डाउट हो तो पूछ लेना।
हो गया? ओके, चलो लेट्स गो अहेड. ग्रीन हाइड्रोजन, फर्स्ट बस टू रन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इन न्यू दिल्ली. ठीक है. किसने इनॉग्रेट किया? मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. कौन है भाई हमारा मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस? बताओ जरा मुझे. हु अवर, होमवर्क लिख लो जल्दी से. ठीक है, अभी आगे चलते हैं. हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, स्पेशली द ग्रीन हाइड्रोजन? मैंने पहले आपको टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं. दैट देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन. उसमें से जो ग्रीन हाइड्रोजन है, दैट इज द बेस्ट. व्हाई? बिकॉज इट इज क्लीन, रिलायबल, क्वाइट एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिक पावर. होता क्या है इसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और बाई प्रोडक्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट क्या है? एंड प्रोडक्ट गैसेस नहीं है, बट हीट एंड वाटर. So that is how it is environmental friendly. Hydrogen is produced through process called electrolysis. And if renewable energy is used to produce hydrogen, like wind or solar, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन. हाइड्रोजन आप अलग अलग तरीके प्रोड्यूस कर सकते हो इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए. ना उसमें जो पावर चाहिए, अगर वो क्लीन सोर्स से आता है, फॉर एन एग्जाम्पल विंड एंड सोलार, तो वो क्या हो जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन. ठीक है. एंड दिस हाइड्रोजन, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन. ठीक है. फिर ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल में क्या होता है? सेल है, तो एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा. ठीक है. सेपरेटेड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट. जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो कौन सी साइड होता है? एनोड की साइड. और जो ऑक्सीजन है वो कहां पे होता है? कैथोड. और कैथोड पे क्या होता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज कंबाइन विथ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टू प्रोड्यूस H2O एज अ बाई प्रोडक्ट. ठीक है. हाइड्रोजन फ्यूल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट हैज द 3 टाइम एनर्जी डेंसिटी, मीन्स मोर एनर्जी देन अदर कन्वेंशनल फ्यूल्स. और एमिशंस भी नहीं होते हैं बिकॉज इट हैज जीरो एमिशंस. ठीक है. इंडियन ऑयल प्लान्स टू इंट्रोड्यूस 15 more hydrogen fuel cell buses in Delhi by the end of 2023. ठीक है. Worldwide, there is a 25% increase in energy demand of green hydrogen. Seeing the importance of green hydrogen, हमने पूरा का पूरा एक मिशन लॉन्च किया था इन जनवरी 2023. नाम क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. ठीक है. और ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मोदी जी ने प्रॉमिस किया है दैट बाय 2070 हम क्या अचीव करेंगे? नेट नेट जीरो एमिशन. वी विल अचीव नेट जीरो एमिशन. ठीक है. नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसकी पीपीटी मैंने पीछे लगाई है, पहले इतना लिख लो. एनी डाउट इन दिस?
एनोड पे क्या होता है? हाइड्रोजन। कैथोड पे क्या होता है? ऑक्सीजन। और सब मिलते हैं किसके साथ? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के साथ। और उससे क्या बनता है? H2O एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है। हो गया। चले आगे। एवरीबडी, हो गया। चले आगे। लिख लिया सबने? चलो। ये पीपीटी है। आप सिर्फ इसका एक फोटो ले लो और सिर्फ इसके फैक्ट्स पढ़ लेना। ठीक है। मैं 30 सेकंड्स के लिए रख रहा हूं। आप क्या करो, सिर्फ फोटो ले लो इसका। ठीक है। आपको ग्रे हाइड्रोजन क्या है वो भी पता चलेगा। जब नेचुरल गैस यूज करते हो आप इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, हाइड्रोजन बनाने के लिए, तब कौन सा हाइड्रोजन होता है? ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है। जब आप नेचुरल गैस यूज करते हो बट आप जो रेसिडुअल है वो अंडरग्राउंड स्टोर कर देते हो कार्बन डाइऑक्साइड को। बिकॉज अगर नेचुरल गैस यूज कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एमिट होगा कि नहीं होगा? तो अगर उस चीज को आप कैप्चर कर लेते हो तो कौन सा हाइड्रोजन बनता है? ब्लू। लेकिन अगर आपने क्लीन एनर्जी यूज की है, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, तो कौन सा हाइड्रोजन बनेगा? ग्रीन हाइड्रोजन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। 2030 तक क्या करना है? 5 MMT।
ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन एन्युअल प्रोडक्शन, ठीक है। 50 MFT कार्बन डाइऑक्साइड एनुअल एमिशन विल बी स्टॉप्ड, ठीक है। फोटो ले लिया आप लोगों ने? गाइस समझ गए? फोटो ले लिया इस पीपीटी का, सिर्फ इसका ही, ठीक है। बाकी सब लिखना, इसका सिर्फ फोटो ले लो, ठीक है। चलो आगे। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, ठीक है। देखो नाम से ही पता चलता है, इट विल मेक अवेलेबिलिटी ऑफ जुडिशियल डेटा वेरी इजी, ठीक है। किस चीज का डेटा मिलेगा हमें? जजमेंट्स का, ऑर्डर का, ऑफ 18,735 डिस्ट्रिक्ट सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स, ठीक है, विच वॉज डन अंडर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट। क्या मिलेगा हमें? डेटा किसके? जजमेंट्स के, ऑर्डर्स के, ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स। रियल टाइम बेसिस के ऊपर आपको ये सारे डेटा मिल जाएंगे ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट, ठीक है। सारे हाई कोर्ट्स भी ऑलरेडी नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मेंबर बन चुके हैं टू प्रोवाइड इजी एक्सेस फैसिलिटी टू द लिटिगेंट पब्लिक, ठीक है। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है उसे 2018 में वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने भी काफी अप्रिशिएट किया था, ठीक है। ये सारी चीजों से क्या हो सकता है? जस्टिस डिलीवरी एंड जुडिशियल प्रोसेसेस कैन बी मेड मच फास्टर, एफिशिएंट। हम डिले रिड्यूस कर सकते हैं, जुडिशियल पेंडेंसी डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा डिजिटली एफिशिएंट कोर्ट्स इंडिया में बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। लिख लो, और कुछ डाउट हो तो पूछ लो। हो गया? चले आगे गाइस। देखो ये भी याद रखना, इसमें लैंड डिस्प्यूट्स, लैंड डेटा, इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, ठीक है। ऑफ 26 स्टेट्स हैव बीन लिंक्ड विथ नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, ठीक है। चले आगे एवरीबॉडी।
चलो, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। देखो, आप सबने CSIR बहुत सुना होगा, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। बार बार सुना होगा आपने CSIR। CSIR क्या है? इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी and it operates as an autonomous body through Society Registration Act. CSIR is a group of some of the best laboratories, state of the art laboratories in India. और ये सारी laboratories establish करने में the pioneer person was शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है? So in India, in order of recognition of achievements in science and technology, आपको कौन सा प्राइज दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। ठीक है? रिसेंटली inaugural session of 1 week 1 lab program of CSIR, ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया अवार्ड्स फॉर 2022। ठीक है? इस साल देयर वर नो फीमेल साइंटिस्ट चूजन फॉर द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। ठीक है? इट इज द हाईएस्ट साइंस अवार्ड्स इन इंडिया। किसको डेडिकेटेड है? फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ CSIR। ठीक है? किसको दिया जाता है अवार्ड? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया एंगेज इन एनी रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अप टू द एज ऑफ 45। ठीक है? जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं एंड POI, अगर वो लोग इंडिया में काम करते हैं पिछले 5 साल में, तो उनको भी ये दिया जाता है। ठीक है? CSIR कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1942 में, विथ इट्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। ठीक है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूरी CSIR के क्या है? प्रेसिडेंट है। मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है? और इसको एक्चुअली में कौन लीड करता है? डायरेक्टर जनरल। ठीक है? लिख लो, शांति स्वरूप भटनागर अगर आप जीते हो तो कितना पैसा मिलता है? 5 लाख रुपया। ठीक है? एनी डाउट इन दिस? हो गया एवरीबॉडी? चले आगे। हो गया? ओके। अर्थक्वेक इन मोरक्को। देखो, यू हैव टू रिमेंबर 2 रीजन।
वन इज मोरक्को, जहां पे बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया है, एंड द अदर इज अफगानिस्तान. लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू अर्थक्वेक. पहले कहां पे हुआ? मोरक्को में. और बाद में एक दो हुए कहां पे? अफगानिस्तान में. ठीक है. मोरक्को हिस्ट्री का सबसे पावरफुल अर्थक्वेक आया 6.8 मैग्नीट्यूड का. Its epicenter was located in Al Haus province within the Atlas Mountains near the historic city of Marrakesh. जनरली लोगों को लगता है कि मोरक्को का कैपिटल क्या है? माराकेश. लेकिन मोरक्को का कैपिटल क्या है? कोई बता सकता है? इट इज रबात. RABAT. ये अर्थक्वेक आने का रीजन क्या है? बिकॉज देर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ अफ्रीकन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट along a complex plate boundary. और ये जो बाउंड्री है उसको क्या, इस जगह पे क्या नाम दिया है? ऑब्लिक रिवर्स. ठीक है. इसमें क्या होता है, अगर ऐसी बाउंड्री है आपकी दो प्लेट्स के बीच में, अपर ब्लॉक मूव्स ऑन द लोअर ब्लॉक विद इन द एटलास माउंटेन रेंज. जैसे हमारी हिमालयन माउंटेन रेंज है, मोरक्को की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज कौन सी है? एटलास. ठीक है. ये इतना डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक क्यों था? बिकॉज ये अर्थ के सरफेस के बहुत ही नजदीक हुआ था. अगर अर्थक्वेक अर्थ के क्रस्ट के नजदीक होता है तो ऑब्वियसली इट विल बी मोर पावरफुल बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस. शैलो डेप्थ बीनीथ द अर्थ सरफेस, इसलिए ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था. अगर बहुत ज्यादा डीप होता तो बाय द टाइम इट रीचेस टू द सरफेस तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? थोड़ी सी कम. ठीक है. लिख लो. अफगानिस्तान के बारे में नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा. ठीक है. वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस रीजन्स आर मोर प्रोन टू अर्थक्वेक्स. मैंने ऑलरेडी आपको हिमालयन प्लेट के बारे में तो पढ़ा ही दिया था. ठीक है. जब मैंने आपको सिक्किम का ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट पढ़ाया था. आई होप यू गाइस रिमेंबर. ठीक है. ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट जब हमने पढ़ा था, कौन सा लेक टूट गया था? याद है? कौन सी रिवर में फ्लडिंग हो गया था बिकॉज ऑफ दैट लेक बस्ट? वेरी गुड मोनिका. चलो आपको इतना तो याद है. गुड प्रेष्ठा. द लेक, द नेम ऑफ द लेक वॉज लोनाक, and because of that the water level increased and it flooded Tista river. आपको ये जो मैं सारी चीजें पढ़ा रहा हूं उसका रिवीजन करना पड़ेगा. ठीक है. ओके गाइस, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. ठीक है. सी यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर. संडे को मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.